Okay, cross product. So there are, as discussed before as well, there are two type of multiplications or product and vectors. One is called scalar, which we have done. One is called vector product or cross product. Okay, vector or क्रॉस प्रोडक्ट. अब इसको वेक्टर क्यों बोलते हैं? वेक्टर इसलिए बोलते हैं जो इसका रिजल्ट आएगा that will be a vector quantity, it will not be a scalar. And why is it called cross? Because इसमें जो symbol यूज होता है that is cross और not dot. Dot नहीं यूज होता, cross यूज होता है. So if you want to write two vectors का formula, it will be a cross. First let's take, we'll edit a cross b is equals to, formula is relatively same. Please mute kar lo, there is some disturbance behind. Please mute both of you. If I will ask, then answer. इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके, इनटू साइन थीटा and a unit vector. The only addition here is that there is a unit vector added. In dot product, we only have till cos theta. Now, what does these values mean? Here, theta is the angle between vectors. ठीक है, ये जो थीटा है ये ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, राइट. व्हाट इज एन? दिस इज इंटरेस्टिंग. ये एन क्या है? सो एन इज नथिंग बट a unit vector, okay, perpendicular to both vector A and B. Okay, understand this. ये जो unit vector आएगा, यही unit vector takes it perpendicular to both the vectors. Now, whatever resultant you get, this vector will be perpendicular to both A and B vectors. And the reason behind is this unit vector, which is perpendicular to both A and B. Okay. Now, there is a concept here, right hand system and left hand system. What does it mean? It simply means कि if you have two vectors, okay, इसको बहुत simple है. You have two vectors, vector A and vector B. इसके बीच में theta angle है. If I write A cross B, it means, now all of you have seen a screw, right? Screw देखा है. So if you tight it, you rotate it clockwise, correct? And when you have to take the screw out, you rotate it anti-clockwise. ठीक है? So all you have to think is, now the direction of this vector will be decided based on the vector which is on the left and vector which is on the right. Meaning, if you write A cross B, it means that the vector is rotating clockwise. Make sense? That the vector is being rotated clockwise. So you have A over here, now you will come towards B. So what are you doing? You are rotating clockwise. Understood? And when you rotate clockwise, imagine this is a wall, right? This page is a wall. If you rotate the screw clockwise, vector will go inside the wall or outside the wall. What do you think? The screw will go inside the wall or outside the wall? Inside. Inside, correct. So in short, your unit vector here will go inside the wall. Okay. If you have to imagine this, right? You can imagine that the vector n is going inside, and when you rotate it clockwise, anti-clockwise, meaning B cross A, right? So A cross B, screw will go inside. Okay. If we have to depict this, we will make a 3D figure. इसको 3D कर लेते हैं. Okay, this is your vector. So imagine now there's a 3D figure. So when you do it, it will go backwards. You can imagine it that your unit vector will go backwards inside. This will be unit vector.
Okay, inside the wall. Similarly, when you have B cross A, ठीक है, जब B cross A होगा तब क्या हो जाएगा? You will be rotating. Let's use a different colors. Let's say this is A and this is B. ठीक है, अब इसको हम करेंगे, सेम रहेगा वेक्टर ए बी. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड बी क्रॉस ए, right? B cross A meaning now you are moving from B to A. So if you imagine you take a screw from B and you start, now you have to rotate anti-clockwise. In this case क्या होगा? In this case your unit vector will come up. अब ये ऊपर आ जाएगा. Make sense? And it will be perpendicular, right, to both vector A and vector B. ये याद रखना. It will both be perpendicular to vector A and vector B, and it is coming outside the wall. ठीक है, outside the wall. ये समझ में आया? Did you get it? This is just for direction. कि n का direction क्या होगा और in Yes, turn sir. what will be the direction of the resultant vectors, which is A cross B or B cross A. Is this clear? Yes, sir. Shreyansh, what about you? Clear है? Yes, sir. Okay. And remember, this is 90 degrees. This is 90 degrees between A and B and N and A and N and B, vector N and B. Okay, this is one thing. Now, there are few results. The results, I will write it since we don't have much time. We will not go through the proofs because I have not seen it coming. And even in case it comes, we'll see. If time permits, we'll go through it. A cross B is also written as minus B cross A. In short, look at this. ये क्या होगा? If we know that vector goes in one direction, uska opposite, equal and opposite vector goes in the other direction. How do you write? You simply put a minus over there, right? So in short, when you put a minus, you can take this minus to the unit vector n, and hence you get a minus over here. Fine. So A cross B, if you want to reverse or if you want to swap the positions, you will have to place a negative. Clear? Any doubts in this? No, sir. Okay. Next formula is related to angle. If you want to find angle between using cross product, right? You can use anything. You can use dot product or cross product, your call. But if you want to use dot product, sine theta will be A cross B, okay, का magnitude divided by individual magnitudes. Right? This is to find angle. Priyanshi, are you there? Yes, sir. Okay, so to find angle between vectors, you can also use this formula along with your dot product formula, where cos theta is A dot B divided by magnitude. Okay. Next thing is unit vectors. Now, if you want to find a unit vector perpendicular to both vector A and B, you can use this formula also, right? But in this, you are also dependent on theta. Theta का value भी given होना चाहिए for you to find a unit vector perpendicular to both of these. Instead of this, if you don't want to be dependent on theta, what you can do is unit vector क्या होगा? A cross B is anyways a resultant vector which is perpendicular to both A and B. Correct? If you simply divide a vector by its magnitude, it is nothing but a unit vector, isn't it? So this is a unit vector. N is a unit vector perpendicular to both A and B.
These questions can come. Find a unit vector perpendicular to both vector A and B. Then you are going to use this formula. Understood? Clear? Yes, sir. Yeah, Priyanshi, clear? Yeah, sir. Yeah, sir. Okay. Yeah, And sir. instead, vector product is not commutative. You will have to place a negative. Okay. Rest of the formulas, there is a summary given in your book, right? The book I have shared. So I will write the important forms. It's like distributive as well. So if I write A cross, okay, B plus C, then it is distributive. So it will become A cross B plus A cross C. Okay, now you start using it cross. When you're using cross product, call it cross. When you're using dot product, use dot. Use these terminologies. I think these are enough. And now the next formula is, remember, whatever I'm writing in blue are all formulas important, okay, which you need to write in your notes for revision. Now, this is about vectors and its directions. You can also find the area of a parallelogram. Okay, area of a parallelogram is nothing but A cross B ka magnitude, right? Now we all know what is a parallelogram. Okay, looks like this. Opposite sides are parallel and equal in length, right? Now what is A and B? A and B are the adjacent vectors. Remember this. That if A and B are given as sides and that to adjacent sides, then you can use this formula. Don't use formula when diagonal is given, then it's not valid. Okay. Only when your vectors A and vector B are given as adjacent sides, you can find the area of parallelogram using A cross B ka magnitude. That's it. Very simple. Okay. Similarly, to find the area of triangle is half magnitude of A cross B. Again, what is A cross B? Same thing. It is nothing but the adjacent sides. So if this is A, this has to be vector B. Okay, adjacent sides. Remember that has to be adjacent sides. Okay, let me number the thing. Okay, try to number it. It's easier to remember. Okay, this is second. This is third. This is fourth. This is fifth. This is sixth. Okay, this is seventh. And after this, one more area formula. Now this is general. Area of quadrilateral. You know what is a quadrilateral? What is a quadrilateral? Anyone? Quadrilateral नहीं पता क्या होता है? It's okay यार बताओ तो तभी तो बताऊंगा मैं. Do you know or don't know? Yes, sir. What is it? Mm, Like it's a closed shape polygon of four sides. Correct. That's it. Polygon of four sides. So a 2D figure, closed 2D figure which has four sides. That is a quadrilateral. ठीक है? Simple. Okay. So area of quadrilateral. If I make any quadrilateral, ठीक है? कैसे बना सकते हो? Imagine this is your quadrilateral and your diagonal vectors are given. Okay. If your diagonal vectors are given as, let's say, d1 and d2, then all you have to do is 1 by 2 d1 cross d2 ka magnitude. That's it. Okay, now this also applies to parallelogram. ये भी quadrilateral है. So if your diagonals are given, then you have to use
half d1 cross d2. Fine? Clear? Understood? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड, ये जो हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, राइट? सिमिलरली वो अब इसमें क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है? तो दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड। मीनिंग, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे कि हमने निकाला था आई डॉट आई का रिजल्ट तुम्हें पता है, उसी तरीके से व्हाट विल बी आई क्रॉस आई। ठीक, आई क्रॉस आई का फॉर्मूला इफ यू यूज, इट विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन जीरो। सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्रीज। 0 ठीक, यूनिट वेक्टर। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? 0 जीरो। तो साइन जीरो जीरो है, तो इन शॉर्ट सब कुछ जीरो हो जाएगा। इन शॉर्ट हियर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब जीरो। 0 Okay? Now this is with respect to the same vectors. What about I cross j? What will be this thing? I cross j is supposed to be, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, it is supposed to be a unit vector which is perpendicular to both these vectors. So isn't k perpendicular to both these vectors? So in short, I cross j जो होगा वो वेक्टर k हो जाएगा. That's it. Okay, understood? और if you will do j cross I, तो ये माइनस k हो जाएगा, right? Because then you are going reverse. I cross j का मतलब क्या है? Think, ये I होता है, ये j, right? X एक्सिस के डायरेक्शन में, Y एक्सिस के डायरेक्शन में. So if you go here, it is anti clockwise. Anti clockwise है तो ये ऊपर आ जाएगा, right? It will come out of the page. ऐसे सोचो, it will come out of the page, meaning it is positive. negative. If it goes inside the page or inside the wall, then it becomes a negative vector. ठीक है? तो I cross j will be k, j cross k will be I and k cross I. ठीक है? k cross I है, तो इमेजिन दिस इज योर वेक्टर. अब k क्रॉस i है, ये गोइंग फ्रॉम दिस अगेन एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वेक्टर j जाएगा. ओके, सिमिलरली आई विल आल्सो राइट j क्रॉस i. अगर निकाल रहे हो तो ये माइनस k हो जाएगा. ठीक है, माइनस k क्यों? बिकॉज नाउ यू आर कमिंग क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज आ रहे हो तो स्क्रू विल गो इनसाइड द पेज, इनसाइड द वॉल. सिमिलरली k क्रॉस j निकाल रहे हो तो माइनस i होगा, और i क्रॉस k निकाल रहे हो तो भी क्लॉकवाइज है, माइनस j होगा. ओके, these are important results. This will be used. ये जो 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा मोस्ट प्रॉब्लम. Okay, now coming to the last part, what if my vector is given as, that vector a is a1i plus a2j plus a3k. Okay, Priyanshi, this is a thing which you did, you were away. So ये समझ में आ गया this portion? Yes, sir. Okay, fine. So vector b is b1i plus b2j plus b3k. तो a क्रॉस b क्या होगा? एक तो फॉर्मूला है यहाँ पे, राइट? बट दिस फॉर्मूला इज नॉट यूज्ड मच बिकॉज generally you are given vectors. So in short, think like this: if vectors are given, so what is a cross b? You guys have studied determinant, ठीक है?
एक डिटरमिनेंट बनाओगे 3 क्रॉस 3 का। फर्स्ट रो में विल गो I J जे and K. Here the first vector का components in the second row and third vector का components in the second vector का components in the second row. तो ये हो गया A क्रॉस D. That's it. You already know how to expand it. ठीक है? Yes, sir. That's it. These are the 10 things in vector product. Scalar triple product is not in your course, correct? STP is out. STP is out, Yes, so sir. we'll discuss it over here. Now, let's see one simple question. Okay, so example 1 is saying if vector A is equals to 3i plus j minus 4k and vector B is 6i plus 5j minus 2k, simply find A cross B. ठीक है, and then find its magnitude. वेक्टर आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वेरी सिंपल. नाउ कैसे करेंगे? वी विल यूज दिस फॉर्मूला. बाय दिस फॉर्मूला बिकॉज यहाँ पे वेक्टर्स गिवन और एंगल गिवन नहीं. इफ एंगल इज नॉट गिवन यू कैन नॉट यूज द फर्स्ट वन, क्योंकि हमें थीटा पता ही नहीं है. So why do we have to go find the angle and then use that formula? Instead of that, we can straight away use A cross B is determinant ना लो I J K. फर्स्ट रो में आएगा, सेकेंड रो में आएगा फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट विच इज 3 1 3 1 माइनस, minus 4 और इसमें थर्ड रो में आएगा सेकेंड वेक्टर का 6 कंपोनेंट 5 minus 2. 2. इतना क्लियर है प्रियांशी? Yes, sir. वेक्टर आई क्या करते हैं, कैसे एक्सपैंड करते हो मैट्रिसेस को, राइट? तो बी एक्सपैंड, ऑलवेज एक्सपैंड यूजिंग R1. तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आई लिख लो ब्रैकेट माइनस जे होता है, राइट? सेकेंड वाला माइनस होता है, वाई? बिकॉज ये पोजीशन 1 2 है. 1 2 पोजीशन में क्या होता है, ऑड होता है. तो -1 to the power 3 विच इज माइनस मिलेगा. ओके, लास्ट वाला प्लस के होता है, पुट अ ब्रैकेट. दिस इज योर स्ट्रक्चर. ओके, स्ट्रक्चर बना लिया. फिर ये वाला ब्रैकेट कैसे मिलेगा, हाइड दिस टॉप टू बॉटम. 1 into -2 becomes -2. Then put a minus from your side before you go and calculate bottom up. 5 into -4 कितना हो गया, -20. minus So 20. you put a bracket and then write -20. This is to avoid calculations mistakes. ठीक है, सेकेंड वाला कैसे मिलेगा, माइनस वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड. हाइड दिस 3 into -2 कितना हो गया, -6. Put a minus from your side. Then bottom up 6 into -4 -24. फिर लास्ट वाला हाइड दिस 3 into 5 15. Put a minus from your side minus 6. 6, सिर्फ 6. माइनस को वहां पे डाल दो, ठीक है? फिर भूल जाओ इसको, ये यहाँ पे पड़ा रहने दो. Okay. All you have to do is calculate this because you have placed the minus. You don't have to call it minus. क्योंकि ब्रैकेट में अगर माइनस हुआ तो सेपरेटली यू आर राइटिंग अ माइनस रिजल्ट. ओके, क्लियर? अब सिंप्लीफाई कर लो. तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 20 - 2 कितना हुआ, 18i. 18. ये भी हो गया प्लस 18i. प्लस 24 - 6 कितना हुआ, 18. 18 j और यहाँ पे minus ऑलरेडी 18 j. हाँ -18j. 15 - 6 कितना 9. है, 9. बाहर भी प्लस है तो 9k. दिस इज योर 9k. हाँ, दिस इज योर A क्रॉस B. ओके, ये आ गया तुम्हारा A क्रॉस B रिजल्टेंट. एंड रिमेंबर दिस विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. फाइन. नाउ ये हो गया पार्ट 1. फिर क्या पूछा था, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है. मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल. हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड लिखा
under Under root root of square of its components. So 18 square plus minus 18 square plus 18 square 18 स्क्वायर कितना होता है? 9 square 324 324 प्लस 324 9 24 स्क्वायर कितना होता है? 81 81 इसको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा इसका डबल. दिस इज डबल मीन्स 846 648 7 प्लस okay 81 9. 729 हाँ 729 अंडर रूट 729. ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये भी शायद है परफेक्ट स्क्वायर. हाँ, हाउ डू यू फैक्टराइज इफ यू डोंट नो? 27 sir it's 27 27. ओके. इफ समबडी वांट्स टू फैक्टराइज क्या करोगे? ये एलसीएम मेथड यूज कर लो. ठीक. दिस इज डिविजिबल बाय 3. कैसे पता है? डिविजिबिलिटी रूल बाय 3. 7 प्लस 2 प्लस 9 आएगा 18. If the sum of the digits is divisible by 3, hence the entire number is divisible by 3. 3 से डिवाइड कर लो इसको. कितना आ जाएगा? 2 4 3. 243 जो होता है ये 3 to the power 5 होता है. एनीवेज ये हो गया 81. 81 और 81 के बाद यू कैन डायरेक्टली यूज 9. तो यहाँ से दिख रहा है कि व्हेन यू एक्चुअली ब्रेक इट इनटू फैक्टर 3 into 3 और 9 into 9 तो तुम्हें दो पेयर मिलेंगे. एक 3 × 3 मिलेगा, एक 9 × 9. इससे क्या होगा? 3 will come out and 9 will come out. Hence 27 is the magnitude. ठीक है. दिस इज फॉर पीपल हु डोंट नो कि ये 27 का परफेक्ट स्क्वायर है. इफ यू नो यू कैन यूज इट डायरेक्टली. फाइन, नो इश्यूज. ठीक है. एनी डाउट्स? no sir no sir एक चीज इसमें हम करते हैं. इफ यू वांट टू वेरीफाई दैट योर रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, कैसे वेरीफाई करेंगे? If you have to prove, let's say there is a question कि prove that your resultant vector is actually perpendicular to A and B, कैसे करोगे? Okay, now let's prove that A cross B is perpendicular to both A and B. कैसे करेंगे? चलो we'll do it. क्या करेंगे? वेक्टर A डॉट वेक्टर A क्रॉस B का वैल्यू निकालेंगे. राइट. तो वैल्यू कितना आएगा? 3 into 18 लिख लेते हैं. चलो इज इक्वल्स टू 3i प्लस j माइनस 4k डॉट 18i माइनस 18j प्लस 9k. डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है. सिर्फ आई के कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई होंगे. 3 into 18 54 माइनस 18 माइनस 36 कितना आएगा? ये 0 ही तो है. हेंस प्रूव्ड हो गया. तो मेक श्योर ये भूलो मत कि अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया किसी भी दो वेक्टर्स का और वो 0 आ गया तो इट मींस कि वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं. इसमें क्या अगर कोई डाउट है तो बताओ. कोई डाउट है इसमें? नहीं सर प्रियांशी? no sir no sir ओके. ये सब चीजें याद रखो. भी कल को एग्जाम हो गया, मान लो कल मैंने टेस्ट लिया तो तुम सोचते रहोगे कि परपेंडिकुलर कब होगा. तो इट्स प्रीटी सिंपल. परपेंडिकुलर है मीनिंग डॉट प्रोडक्ट 0 है. सिंपल. ठीक है. पैरेलल है तो a इज इक्वल टू लैम्डा बी. यही दो कंडीशन है पैरेलल और परपेंडिकुलर की. और ये इंपॉर्टेंट है. 6 into 18 कितना होगा? 108 108 माइनस 5 इंटू माइनस 18 माइनस 90 और ये माइनस 18. ये भी 0 है. हो गया प्रूफ. करेक्ट हो गया ना? सो इट प्रूव्स कि जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि a क्रॉस b विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, वो ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं. एंड वी हैव प्रूव्ड इट. राइट. एग्जांपल नंबर 4 बहुत ही सिंपल है. क्या बोल रहा है? फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच
वन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। फाइंड a unit vector perpendicular to both vectors। कौन कौन से वेक्टर्स हैं? वेक्टर ए विच इज 4i माइनस जे प्लस 3k, बी 2i प्लस 2j माइनस के। कैसे करेंगे? यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला मेंशन है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी कैसे निकलेगा? ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम मिल जाएगा। ट्राई करो इसको। जस्ट टू कंप्लीट इट, लेट्स चेक। क्या करना है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम विल बी ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट, राइट। मैग्नीट्यूड। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, बिकॉज टू फाइंड ए क्रॉस बी देयर आर सम स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? मेक अ डिटरमिनेंट आई जे के 4 माइनस 1 3, ए का कंपोनेंट बी वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा -1 आई, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस 6 माइनस जे, ब्रैकेट में क्या आएगा? -4 माइनस 6 -6 प्लस के, ब्रैकेट में आएगा 8 प्लस 2, वेक्टर क्या आ गया? -5i प्लस 10j। -5i plus 10j तो ये plus आ गया 10j। वेक्टर हमारा ए क्रॉस बी। ठीक, अब इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी √25 प्लस 100 प्लस 100, ये कितना है? 225 विच इज 15। 225 करेक्ट। सो 15 यूनिट वेक्टर क्या आ गया? -5i प्लस 10j प्लस 10k डिवाइडेड बाय 15। इसको सिंप्लीफाई 15 करेंगे, 50 -1/3 i minus 2/3 j 2/3 k, ये आ गया यूनिट वेक्टर। 3। ठीक है, इजी, ये सब क्वेश्चंस इजी हैं। Yes. मेक श्योर यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए फॉर यू टू आंसर क्वेश्चंस। ऐसे रैंडमली फॉर्मूला याद करके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू एक एग्जाम्पल 9 देखो। एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √26, magnitude of B is 7 and magnitude of A cross B is 35। बोल रहा है फाइंड वेक्टर A डॉट वेक्टर B। अब इफ यू B. गेट क्वेश्चंस लाइक दिस, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, यू नीड टू चेक कि व्हाट आर दे आस्किंग, पूछ क्या रहा है। क्या पूछ रहा है? A डॉट B, उसका फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि A डॉट B का फॉर्मूला पता है, ऐसे आंसर शायद ना दिखे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होता है फॉर्मूला, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑलरेडी गिवन, ठीक। तो व्हाट इज मिसिंग? व्हाट विल गिव यू द आंसर? दिस इज योर मिसिंग पीस, नॉट cos थीटा बट थीटा, करेक्ट। इन शॉर्ट एंगल निकाल लिया तो वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे नोन वैल्यूज डाल दो। √26, बी कितना है? 7 cos theta, this is equation 1, because we are going to break this step and start a new formula। अब थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के और भी तरीके हैं। यू कैन ऑल्सो यूज ई क्रॉस बी, करेक्ट। यहाँ पे देखो देयर इज अ फॉर्मूला, राइट। यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिससे हम एंगल निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा विल बिकम
magnitude of A cross B divided by individual magnitudes. Correct. Magnitude of AB given है 35 divided by अंडर रूट 26 इंटू 7, ये कितना हो गया 5 अपॉन अंडर रूट 26. करेक्ट. साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन अंडर रूट 26. यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. किसी को डाउट नहीं? सर अब एक चैलेंज और है. साइन थीटा पता चल गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो बिकॉज थीटा इज नॉट अ नोन एंगल. ये कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं आया है कि तुम थीटा का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो. बट ट्रिग्नोमेट्री में इफ यू नो वन टी रेशियो यू कैन फाइंड अदर टी रेशियोज. हाउ? इसके मल्टीपल तरीके हैं. या तो आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज कर लो विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और ट्राइंगल बना के कर लो. So I'll tell you the triangle method because this is the most useful. इससे कोई भी रेशियो निकल जाता है. ये है थीटा. If this is theta, this will be 5 and this will be 26. Correct? Because sine is perpendicular upon hypotenuse. Do you guys know this much? पता है? Yes sir. ये वाला साइड कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम. ये हो जाएगा 1. 1 कैसे हो जाएगा? अगर इसको तुम मान लो b फॉर एग्जांपल, क्या होगा? अंडर रूट 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. राइट. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ये क्या हो जाएगा? 26 माइनस 25 इज इक्वल टू b स्क्वायर, और b स्क्वायर इज 1 और b का वैल्यू आएगा 1. इन शॉर्ट ये जो साइड आएगी ये है सिर्फ 1. मेक सेंस? करेक्ट. कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है? बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है 26. कॉस थीटा का वैल्यू आ गया. इक्वेशन 1 में डाल दो, हो गया आंसर. फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉस थीटा मिसिंग था ना यहाँ पे. थीटा या कॉस थीटा कुछ भी मिल सकता है. कॉस थीटा मिल गया तो योर आंसर विल बी a dot b is equals to 7 under root 26 into 1 upon under root 26. ये कटेगा, आंसर आ गया 7. ठीक है. इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बट इजी है. 2 चैलेंज है प्रोवाइडेड यू गाइस नो ट्रिग्नोमेट्री. चैलेंज नहीं है. पहला तो a डॉट b और क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है तो इट मे बी कंफ्यूजिंग. कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है. यू नो वेक्टर्स पढ़ लिया है तुमने पूरा, कुछ कॉन्सेप्ट बचे नहीं है. राइट. एसटीपी इज नॉट इन योर कोर्स सो लीव दैट. तो a डॉट b जो होगा पहले उसका फॉर्मूला लिखो, फिर देखो कि क्या क्या गिवन है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो. जो मिसिंग है फिर गिवन कंडीशंस यूज करके जो मिसिंग है उसको फाइंड करें. ठीक है. फिर साइन थीटा से हमें एंगल मिल जाएगा. ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम कोई भी टी रेशियो निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड यू नो ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. एनी डाउट्स इन दिस? व्हाट इफ ट्राइंगल गिवन है? ठीक है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली एक क्वेश्चन ये भी डाल देना, एक क्वेश्चन ये डाल देना, जरूरत नहीं है. एक क्वेश्चन ये डाल देना इन योर नोट्स. ठीक है. इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा? यू आर गिवन द वर्टिसेस. मान लो दिस वर्टेक्स इज a 1 2 3. ठीक. दिस वर्टेक्स इज b 2 -1 4, और ये वर्टेक्स है c 4 5 -1. इसका बोलेगा फाइंड एरिया यूजिंग वेक्टर्स. कैसे निकालोगे? डोंट स्टार्ट डूइंग, फर्स्ट टेल, थिंक हाउ विल यू डू इट, देन टेल मी कि कैसे होगा, फिर आगे करेंगे. Sir, for a position vector of a minus b and b minus c. A minus c. हाँ करेक्ट. तो सबसे पहले निकालेंगे एडजेसेंट वेक्टर्स.
कैसे निकलेगा? दो कोऑर्डिनेट गिवन है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, करेक्ट। तो सबसे पहले निकालेंगे वेक्टर EB। EB कैसे निकलेगा? 1 माइनस 2 B I, minus A सॉरी इसको कर लो, ये हमें BA बोलेंगे, वेक्टर BA, क्योंकि हमें एडजेसेंट वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो विल कॉल इट वेक्टर BA। तो BA क्या हो जाएगा? जो बाद में लिखा है माइनस द फर्स्ट वन, सो 1 माइनस 2I minus प्लस क्या हो जाएगा अब? 2 माइनस ऑफ माइनस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1J 2 1 प्लस 3 माइनस 4K। तो वेक्टर BA कितना आ गया? 4K माइनस I 4K, अच्छा, प्लस 3J माइनस K। दिस इज योर वेक्टर BA विच इज वन ऑफ आवर एडजेसेंट साइड्स हमें मिल गई। ठीक, दूसरा क्या निकालेंगे? वेक्टर BC। वेक्टर BC is nothing but position vector of C minus position vector of B, और in short coordinates को subtract करो, बाद वाला माइनस पहले वाला, C माइनस B करेंगे component वाइज। तो 4 माइनस 2 I, फिर 5 माइनस ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1J प्लस माइनस 1 माइनस 4K। ठीक, तो 2I प्लस 6J माइनस 5K। ठीक है, क्लियर है? ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वेक्टर्स में, हाउ टू फाइंड पोजीशन वेक्टर्स। सो कभी भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, वेक्टर्स निकालने हो, Yes, सिंपली sir. यूज पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला। अब व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज नथिंग बट, राइट द फॉर्मूला, हाफ into मैग्नीट्यूड ऑफ इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू हैव फाउंड, BA क्रॉस। ये हो गया ना हमारा एरिया। ठीक है, क्लियर? नाउ रिमेंबर, वेदर यू यूज दिस फर्स्ट और दिस फर्स्ट, इट डजंट मैटर, व्हाई? क्योंकि तुम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो वो वैल्यू सेम आएगी। फॉर B क्रॉस A एंड A क्रॉस B इट विल बी सेम, करेक्ट? पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव विल डिसॉल्व। दिस विल बी योर 1। अब BA क्रॉस BC निकाल लेंगे, जैसे निकालते हैं, राइट डिटर्मिनेंट्स I J K। BA कितना है? -1 -1 3 -1। BC कितना है? 2 6 -5 2 6 -5। I रखा, इसको -15 प्लस 6। ठीक है, आई एम एडिंग दिस माइनस माइनस डायरेक्टली। माइनस जे कितना होगा? हाइड कर लो, 5 प्लस 2 5 plus 2 के कितना होगा? इसको हाइड कर लो, -6 -6। minus 6 ठीक है, तो ये कितना हो गया? -9I -7J -12K। दिस इज आवर वेक्टर। हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, BA क्रॉस BC। दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली वो स्क्वायर। तो -9 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 प्लस 49 प्लस 144। 49 ऐड करो, 49 प्लस 81 इज हाउ मच? हो गया 130। 130 प्लस 144 230 274 274, करेक्ट। ये आएगा 274। किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, no sir बिकॉज 13 ये आएगा 15 16 एंड 17 के बीच में। ठीक, तो व्हाट विल डू, वी विल 30 करेक्ट, इसको हम ब्रेक करेंगे फैक्टर्स में। अंडर रूट है, नॉर्मल प्रोसीजर। 27 इंटू 4, ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो वी विल ट्राई बाय 4। 4 से भी डिविजिबल नहीं है, विल गो फॉर 2।
2 इंटू कितना हो जाएगा 187 इज इट? हाँ 187 187 इज 7 से जाएगा नहीं जाएगा 187 इज 13 नहीं इट्स ओके इतना मेहनत नहीं करेंगे बिकॉज आई थिंक 187 इज द प्राइम नंबर लीव इट हियर इट कैन नॉट बी ब्रोकन तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be half A B C 274 square units हो गया आंसर 4 units. ठीक है क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसे वर्टेक्स दे दिया तो ये एडिशनल स्टेप्स करने पड़ेंगे उसमें ठीक है आप बोल दिया कोलिनियर प्रूव करना है कोलिनियर के लिए क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है रिमेंबर दैट वी डिड दिस इन डिटरमिनेंट्स करेक्ट तो टू प्रूव Yeah, कोलिनियरिटी sir. area of triangle ABC will be 0. Same condition collinearity. It doesn't change. He proved that A cross B plus C plus B cross C plus A plus C cross A plus B is equals to 0. मान लीजिए क्वेश्चन आ गया अब इट्स सिमिलर क्वेश्चन जैसे डॉट प्रोडक्ट में था that you don't have the actual vectors given right vectors will be given in alphabetical form तो क्या करेंगे हम यहाँ यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी LHS लेंगे फर्स्ट LHS में क्या ओपन करेंगे तो A क्रॉस B आएगा प्लस A क्रॉस C आएगा आई पुट ब्रैकेट्स टू डिस्टिंग्विश ये इसका ब्रैकेट ठीक है इसमें क्लियर प्लस Yeah, sir. B क्रॉस C प्लस B B क्रॉस A. B cross A प्लस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B ठीक है ये लेफ्ट C साइड है cross तो B. डोंट राइट इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू लगा दिया यू हैव टू शो कि ये 0 है अब यहाँ पे देखो ये है A क्रॉस B ये है B क्रॉस A तो इफ आई वांट टू चेंज A cross B into B cross A all I have to do is put a negative over here yes or no करेक्ट प्लस और यहाँ सेम चीज हमारे पास है A cross C and C cross A so if I have to change A cross C into C cross A I need to swap the vectors in cross right you remember there was a formula in the beginning we did ये Yeah, वाला sir. okay A cross B is equals to minus B cross A if you swap the vectors वहां पे माइनस ऐड कर देना ठीक है वो आ गया और लास्ट वाला इफ यू डू B क्रॉस C B और ये दो cross C. तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस C क्रॉस D ठीक है बाकी सब वी विल राइट एज इट इज सो B क्रॉस A इज विल बी रिटन एज इट इज प्लस C क्रॉस A will be written as it is plus C cross B will be written as it is ये सेम में कट गया ये दोनों सेम में कट गया ये सब सेम में कट गया क्या बचा 0 equals to RHS hence proved this is easy इसमें मैं सिर्फ माइनस का Yeah. कॉन्सेप्ट बताऊंगा yes or no Yes, sir. clear Yes, I can't hear you this is clear Yes, sir. ठीक है एक क्वेश्चन और देखो Yes. ये बड़ा है इसमें क्या बोल रहा है if vector A plus vector B plus vector C is equals to 0 prove that vector A cross B is equals to B cross C
इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। ठीक है, ये है तुम्हारा वेक्टर। अब ये आ गया तो कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए सब बराबर है, राइट? एंड द ओनली इंफॉर्मेशन वी हैव इज दिस। तो पहले इसको ही लिख लो, गिवन कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी इज 0। ठीक है, फिर यू हैव ओनली टू वेक्टर्स ऑन वन साइड, तो एक वेक्टर को उधर कर लो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना हो जाएगा? माइनस वेक्टर सी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? Yes. अब इसके No, बाद sir. क्या कर सकते हैं? तुम्हें चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आता है, एंगल विल नॉट बी इक्वल। इसको करने के लिए यू हैव टू डू ए क्रॉस बी। हाँ करेक्ट, ये हो जाएगा। सो इसमें क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाइंग, नाउ वी नीड अ क्रॉस बी। इसको देखो, क्रॉस बी के लिए एक क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए विद बी, तो यू विल डू मल्टीप्लाइंग बी एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स। तो ये किया तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी। करेक्ट, तो ये वाला पार्ट हमने ऐड किया ऑन बोथ द साइड्स। क्लियर? ये क्या है? इट इज नथिंग बट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट बी क्रॉस सी। ठीक है, नेगेटिव चेंज करना है तो विल सिंपली स्वैप द वेक्टर्स। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 0। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो साइन 0 मिल जाएगा। हेंस वी गेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। एक रिजल्ट मिल गया, राइट? सिमिलरली इस इक्वेशन को फिर से रीयूज करेंगे और इस बार वी विल डू ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, अभी हम माइनस माइनस बी करें कि हाँ माइनस बी करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ क्रॉस सी, तो सी क्रॉस बी आ जाएगा। करेक्ट, हमें चाहिए सी क्रॉस ए, तो वी विल सेंड ए ऑन द अदर साइड। अब क्या करेंगे? बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। ये कर सकते हैं? यस, नो? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? Yes, sir. Yes, We can sir. transfer whatever we need. Now why are we transferring this? क्योंकि हमें C क्रॉस A चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? सेम थिंग, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A। B प्लस सी, देखते हैं क्या होता है, क्रॉस A माइनस A क्रॉस A। सो वी हैव एडेड दिस थिंग एडिशनली। लेट्स सी क्या होगा। तो B क्रॉस A मिलेगा प्लस सी क्रॉस ए मिलेगा। ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। 0. सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, सी क्रॉस ए वी गॉट माइनस बी क्रॉस ए, और माइनस को प्लस में करना हो तो रिमूव द नेगेटिव साइन, यू विल गेट ए क्रॉस बी। ये इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1। नाउ कंपेयर दिस, a cross b is equals to b cross c and a cross b is equals to c cross a. You write hence by comparing 1 and 2, a cross b is equals to, यहाँ से b cross c, correct, is equals to a cross b also equals to c cross a, which will be equals to c cross a. Hence 2. Yes, sir. ठीक है, this okay, question number 10th.
Exercise 24, question number 10. Okay, question number 10 says if vector A is I minus j, vector B is 3j minus k, and vector C is 7i minus k. Find a vector D. Find a vector D which is perpendicular. Okay, which is perpendicular to A and B both, and for which vector C dot vector D is 21. Now we have done this question. Sorry, not 21. It is 1. Okay, so we have to find a vector D. Now we have done a similar question where, now this type of question, what happens? You will be given 3 vectors, or let's say 2 vectors, and there will be a vector which they will ask you to find. In this case, it's vector D, and they will give you a condition to form equations. Now, the condition they have given is that vector D is perpendicular to A and B. So as soon as we read this, what condition do you get? Vector D dot vector A will be equals to 0. 0 because they are perpendicular. Perpendicular. Right? Now, first let vector D be, you can take it like this, D1 I plus D2 J plus D3 K. So you can take the same variable and you can add subscripts. Okay, that is one way. You can also take X, Y, Z. It is your call. I am taking D1, D2, D3. So the two conditions what we already have is that vector D is perpendicular to vector A, meaning D dot A will be 0. 0. Now, what will this be? So this only has I minus J, and this has D1. So D1 into 1 will become D1, right? Then Yes, sir. D2 into minus 1 will become minus D2, Minus and if equals you to 0. see, there is no K component, so it will be like 0K. 0. In that case, this D3 becomes 0. You don't have to write it. Is equals to 0. Correct? So from here only you get D1 is equals to D2. This is D2. one value you got. Or again, you can say one equation you got. Clear? Second, D is also perpendicular to B. So then D dot B will be 0. Same thing. Correct? Vector B is 3j minus k. So if you look at this, there is no I component. So you can write it as 0i. Meaning we will not write D1. D1 into 0 will become 0. Right? Let me write it. 0 into D1. Then you have plus 3. So D2 into plus 3 will become 3. 3D2. And finally K, this will become minus 1 into D3, or minus D3 Minus D3. equals to 0. So what do you get? You get 3D2 is equals to D3. D3. You get another equation. Correct? So these are the two equations, and you have 3 variables, right? Now, generally, if you have 3 variables, we go for cross multiplication method. In this case, it may not be needed because you are getting that one variable is equals to the other, and the third variable is 1/3 of the second variable. 3D2 is equals to D3. Now let's use the final condition. C dot D is equals to 1. C dot D equals to 1, meaning, now look at vector C. C doesn't have which component? It doesn't have J component. So we will not write D2. You will have 7D1 minus D3. 7D1 minus D3 is equals to 1. Any doubts here? No, sir. Okay. Or now see, you can replace D3 is also in terms of D2 and D1 is also in terms of D2. So what you can do is you can take the values of
d3 from here and put it here, and take the value of d1 from here and also put it in the same equation. So what do you get? You get 7d2 minus 3d2 is equals to 1. Correct? Which is Yes, sir. how much? 4d2 is equals to 1, or d2 is equals to 1 by 1 by 4. 4. That's it. You got your d2. As soon as you get your d2, put it back. So d1 and d2 both will be 4. d1 is equals to d2 is equals to 1 by 4. This is one value. And d3 will be how much? d3 is 3 into d2. So d3 will become 3 into d2, which is 1 by 4, or d3 is 3 by 4. Hence, vector d will become how much? 1 by 4 I plus 1 by 4 j plus 3 by 4 k. Yeah. This is your vector. Yeah, sir. See, there are two vectors. Think it like this. Let's say this is vector AB. Okay. And let's say this is vector BC. Vector A. Okay, I am writing the point so that you know that this is vector AB. And let's say this is vector BC. Right? Okay. Now, imagine if your vector AB. So we know that first of all, okay, let me do it like this. First of all, we have to find vector AB. So to find vector AB, what do you do? Vector B minus vector A, right? In short, position vector of B minus position vector of A. So what do we get? We get I minus 3I, I minus 3I, correct? Then J minus of minus 2J, correct? And then K minus 4K. I'm putting brackets so that the components are clear. So we get AB as minus 2I plus 3J minus 3K. This is our vector AB. Okay. Similarly, you will also find vector BC. So same thing, vector BC will be position vector of C minus position vector of B. Now minus this minus I becomes minus 2I. Okay, let's write it directly. Then 4J minus J becomes plus 3J. 3J. This Plus much calculation you guys can do in Yes, your head. So it looks like it's coming out to be same. Minus 2K minus K becomes minus 3K. 3K. So one thing is that these two vectors are exactly same. So what will happen? Vector AB is equals to vector BC, which is of the form vector A is equals to lambda B, meaning that A and B are parallel. Okay. So what happens? This condition indicates, okay, please understand this carefully. This condition indicates that A and B are parallel. And since B is the common point, okay, so if B is the common point, what is the case? First of all, they are equal. What will happen? This vector will come over here, isn't it? It's a common point, right? So if it's a common point, why will the vector be here? It will be here. Make sense? And since the vector is here, okay, since the vector is here, it is collinear. All the points lie on the same line. Do you understand this? So this Yes. line is very, very important, that it has to be the common point. If they don't have a common point, two vectors can be equal like this, right? They are equal and parallel, but is it collinear? No. No. Understand this. Let's say if this is
A, this is B, and let's say this is C and D. They are equal vectors, right? Like this. But do they have a common point? No. If they don't have a common point, how they are collinear? Do you understand? Yes. So it has to have a common point, meaning this has to be B so that you can pick it up and place it over here. Understood? Yes, sir. Okay, clear? Yes, sir. Okay. Fine. So this is how we will prove collinearity. This is one way. Another alternative way is, I'll show you in the same question. Josh, can you hear me? Yes, sir. This is clear? Yes, sir. Okay. Another way is, okay, I'll show both of them. You can use any one method. It's your call. Area of triangle of A, B, C has to be 0 if it has to be collinear, yes or no. So all you do, you find area of triangle because you have already got your AB and BC. Now assuming that A, B, C are the vertices of a triangle, correct? So let's say this is A, this is B, and this is C. So we have already found AB and BC. It's fine if it's the other way around. It's okay. It doesn't matter. But ultimately, we'll be finding the magnitude. So you can find, or you can also write this as BA cross BC. So area of triangle ABC will become half magnitude of what? BA cross BC. Correct? This is the formula to find area of a triangle. Now, we have AB. So what will be BA? We'll tell. If AB is this, what will be BA vector? B minus A. हाँ, in short, B minus A नहीं है, यहाँ पे बस इसको sign change कर दो. Okay. ये will be what? Minus AB, right? Minus AB. तो AB जब निकाल चुके हो तो उसमें minus लगा दो, हो गया. Minus. निकालना. Is this clear? Negative of a vector is simply put a minus outside. That's all. इतना ही करना है. ठीक है? तो let's write it. One by now. What we'll do first? We will find. Call it equation 1. First, let's find BA cross BC. क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट बनेगा I J K. We have been doing this. अब AB ये है तो BA कितना हो जाएगा? 2I minus 3J plus 3K. What we have done is change the sign. Yes or no? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 minus 3 and 3. plus 3, right? So ये minus 2 क्या हो गया? Plus 2 plus 3 minus 3 और ये minus 3 हो गया plus 3. BC will remain as it is. BC is what? Minus 2 plus 3 minus 3. Minus 2 plus 3 minus 3. Minus 3. Correct? Let's find it. I will be how much? 9. So we'll hide this. Minus 3 into minus 3. 9. 9 minus 9 कितना हो गया? 0. Right? By the way, there's one property of determinant. I'll tell you again. Properties is not in your course. But if 2 rows or 2 columns in a determinant are identical, then your determinant the value becomes 0. How? We can take a minus common in R2. So then this will become plus and minus. So it actually becomes identical, but we can show it here. So this becomes 0. Let me write 9 minus 9 so that you know why is it 0. Minus J. What do we get? If you see, minus 6 and minus of minus 6 will become plus 6. Again a 0. Plus K. 6 plus 6. minus No, of no. minus. 6 minus. First you will put a minus. I was telling this yesterday also. Yeah. First you put a minus, then you will multiply. Minus 2 into minus 3 is plus 6. Plus You get 0 minus 0. 0 plus 0. In short,
it is a zero vector, जो BA cross BC. Hence, area of triangle ABC is zero. Hence proved. Hence, the points are ABC are collinear, or the vectors are collinear. Yes. Okay, this question is important. Please put this in your notes and do with both the methods. Okay, this is method 1 where you are using, what do you call this method? You can tell this as position vector method, Position. right? Let's call it position vector with a common point. Remember, this common point is the most important part. Without this, you cannot claim that your vectors are collinear. Collinear. And what is this? Method 2 is the triangle method. Okay, let's call it the area of triangle method. Or just call it triangle. Any doubts? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. ये क्वेश्चन आ सकता है, टेलिंग अगेन, तो इसको एकदम अच्छे से समझना, बिकॉज इट्स वेरी इजी. ऑल यू हैव टू डू इज कैलकुलेशन, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन ओवर हियर. बस जाके सॉल्व करना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 saying show that the points having position vectors, up they have, the only confusion they are creating is they are not giving you vectors in ijk form. Okay, that's the only difference. And vector c is given as 3a minus 2b, right? Are collinear provided ABC is anything. Correct? Yes. So what do you have learned? You have learned how to find the position vector. Correct? So Yes. let's try the position vector method, see if it works. क्या ज्यादा क्या करेंगे, IJ के फॉर्म में नहीं रखेंगे ना. पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? If you make this as points, क्या होगा? There will be 1 point here, 1 point here, and let's say 1 point here. Fine. Now, position vectors of A, if I have to represent this on a, let's say 3D graph, क्या करेंगे? We'll make this, we'll make this, we'll make this. ठीक. वेक्टर A क्या हो जाएगा? वेक्टर A will be this. यही मतलब है ना, दिस इज वेक्टर A. वेक्टर B क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं पॉइंट को, सो दैट वी कैन मेक इट क्लियरली. ठीक है, ये क्या है? वेक्टर, ये B हो जाएगा. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट पोजीशन वेक्टर्स. तो ये वेक्टर B है, और ये क्या है? ये लास्ट वाला, इसको वेक्टर C बोल देते हैं. ये क्या हो गया? ये वेक्टर C हो गया. ठीक है. अब हमें क्या है? हमको ये शो करना है कि ये तीनों वेक्टर्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू शो यू द मीनिंग ऑफ कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर ऑलवेज इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन, अगर सिर्फ एक वेक्टर को बोल रहा है. राइट नाउ यू हैव टू शो दैट दिस पॉइंट. तो तुम क्या करोगे? तुम पहले ये निकालोगे, राइट? विल फाइंड दिस वेक्टर्स. ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. यस और नो? करेक्ट. क्या हो जाएगा? पोजीशन, और सिंपली इफ यू कॉल दिस पॉइंट एज लेट्स से ए, and let's call it B, and let's call this point C. We can call whatever we need. It's a coordinate. ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, it is called coordinate. If you join it through a line segment with an arrow at the end, it becomes a vector. Right? Any doubts? No, sir. यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो. इसको समझना भी जरूरी है, सिर्फ फॉर्मूला लगा के नहीं होगा. मतलब हो जाएगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ फॉर्मूला लगा के नहीं होगा. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए बी. सेम चीज कर रहे हैं जो हम यहाँ पे कर रहे थे. वेक्टर ए बी निकाल रहे हैं.
Only difference is we are not given the vector in ijk form. So what? अभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा ना. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको कैपिटल बी एंड कैपिटल ए बोलेंगे. इट इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज वेक्टर बी, और ये क्या है? माइनस ए. तो ये बी माइनस ए हो गया. दैट्स इट. करेक्ट. ये होगा ना. Yes, sir. उसके बाद क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे वेक्टर बीसी. राइट, वेक्टर बीसी निकालेंगे. तो वेक्टर बीसी क्या आ जाएगा? वेक्टर सी कितना है? 3a माइनस 2b. ठीक है, माइनस बी, यही होगा ना. करेक्ट. इसको ओपन करो, कितना आएगा? 3a माइनस 2b माइनस b इज हाउ मच? वेक्टर बीसी भी कितना आया? 3 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b. 3 कॉमन ले लो, माइनस 3 कॉमन ले लो, क्योंकि हमें इक्वल दिखना है. ये क्या आ गया? लुक एट दिस. ये क्या है? ये ए बी ही है ना. Yeah, yeah. सो व्हाट इज दिस? Isn't vector BC is equals to lambda vector AB? Yes, it is. तो ये पैरेलल हुआ कि नहीं है? Yes, sir. Does this make sense? It is of which form? Vector A is equals to lambda B, meaning कि hence vector BC and AB are what? Parallel. यहाँ तक क्लियर है कि if vector A is equals to lambda into vector B, then vectors are parallel. ये parallel की condition. Understood? अब because they are parallel and they have a common point ना, and they have B as the common point, hence they are collinear. हो गया. That's it. ठीक है ना? Clear? Any doubts? Yes. No. Okay, and it said show that the points having position vectors are collinear. So if you are wondering कि ABC तो दिखाएंगे, तो हमें ABC नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है कि position, okay, the points are collinear. तो ये और ये सब collinear है. It will lie on a straight line. ये ऐसे आएगा, मतलब B यहाँ पे होगा. ये this is just a diagrammatic representation of the beginning, because we cannot make a diagram showing कि they are collinear. You have to make it otherwise and then prove the same. क्या बोल रहा है? Find a unit vector perpendicular to plane A B C. ठीक है, where the points, now you will have to understand this question. बहुत easy है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत easy है, but you will have to understand where the points A is, ये कितना दिया है? 3 minus 1 2, point B is 1 minus 1 minus 3, and C is 4 minus 3 1. ठीक है. Yes. सो पहले अंडरस्टैंड दिस. हम एक प्लेन बनाएंगे 3D. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. इमेजिन दिस इज अ 3D फिगर. Fine, let's say this whatever we have made is in the form of 3D, right? Now you have to find a vector which is perpendicular. पहले यूनिट छोड़ दो. You have to find a vector which is perpendicular. So let's say we make, say I'll make a random dot dot line. Dot dot means कि it is perpendicular to this plane, right? ये perpendicular है इस plane से. You will have to imagine this because I can't draw a 3D figure. ठीक है? Yes. Clear? हाँ, it's fine. I'll not go into drawing. ठीक है? But so what do you have to do? A unit vector perpendicular to two given vectors can be found. कैसे? All you have to do is ये A है, ये B है, ये C है. Now
assuming this is vector A and this is vector B, if you want to find a unit vector perpendicular to two vectors, what do you have to do? Simply क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट? यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था, सी, दैट्स इट। ये इसका फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर n इज इक्वल्स टू a क्रॉस b, मतलब again remember when you are talking about cross product, whenever you find a cross product, just tell yourself या understand this much कि ये perpendicular ही है to the given vector. So imagine this कि the vector is coming out towards you, so that is a perpendicular vector. ठीक, any doubts? तो इसमें क्या करना है, ये वेक्टर बी ए निकाल लो, वेक्टर बी से निकाल लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। So a unit vector n will be, let me write it, vector BA cross vector BC divided by their magnitude, यही होगा ना, correct? So all they said that they have, see how they manipulate the question, plane बोल दिया इसको, so what, ठीक है plane है, so क्या हो गया, if plane भी है तो find a unit vector to the plane ABC. So the only confusion they created is they told you a plane ABC. So now if vector A and vector B is on this plane ABC and you need to find a unit vector perpendicular to this plane, all you have to do is find a cross product. Automatically perpendicular निकल जाएगा. Understood? Yes. अब BA निकालना है तो इसको बोल दो equation 1. First write the formula what you need to find. Then take a break, means break the step. इक्वेशन 1 बोलो, we will find BA क्रॉस BC. उसके पहले वेक्टर BA निकालेंगे, कितना आएगा वेक्टर BA, A माइनस B होगा, ठीक है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग BA. सो नाउ दिस विल बिकम पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं. तो सेकेंड माइनस द फर्स्ट होता है हमेशा, ठीक, सेकेंड माइनस द फर्स्ट, तो माइनस कर लो 3 माइनस 1. अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मेंटली सॉल्व हो सकता है. टू कितना, 2i, देन माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, और सेम भी है, सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 0, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ 0j. और लास्ट वाला 2 माइनस ऑफ माइनस 3, ठीक, 2 माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस 5j. So what do we get, 2i plus 5j comes out as your vector BA. Clear? हाँ, कोई डाउट है? It should be नहीं, 5k तो बताओ. और 5j. अरे हाँ, सॉरी, करेक्ट k. चलो बढ़िया है, टेंशन दे दियो तुम, ठीक है. 2i plus 5k, j हो गया 0. अब ये क्या है, BC निकालना है, BC क्या हो जाएगा, अब होगा दिस माइनस दिस, BC निकालना है. तो बताओ फ्रेंड्स, 4 माइनस 1 कितना है, 3, 3i, ठीक. उसके बाद माइनस 3 ऑफ माइनस 1, तो जब ऑलरेडी, हाँ करेक्ट, ये हो जाएगा माइनस 2j. और लास्ट वाला 1 माइनस ऑफ माइनस 3, नहीं माइनस 4 क्यों होगा, 1 माइनस ऑफ माइनस 3 है तो 1 प्लस 3 हुआ, प्लस 4 होगा ना, माइनस क्यों होगा, ये हो जाएगा प्लस 4k. Shreyansh, did you get this same value? Yes, sir. You have already done this question, right? Same? Okay. Yes, sir. Cool. So we have the answers matching, means we are going right. अब क्या करोगे, BA क्रॉस BC निकालेंगे. तो डिटर्मिनेंट बनाया, I J K बनाया, फिर यहाँ पे लिखा 2 0 5
कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स लिख लिया, फिर आई लिखा, ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट में लगाने का मतलब टॉप डाउन 0 हो गया, माइनस ऑफ -10 कितना आएगा, +10 आ -10 जाएगा। -10 नहीं आएगा प्रियांशी, +10 आएगा। अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ। सी पहले ब्रैकेट देख लो कैसे यूज करना है। यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट, 0 × 4 इज 0, माइनस लगाया खुद से, फिर आया -10, तो ओवरऑल आ जाएगा +10। +10 फिर -j लगाएंगे बिकॉज ऑड पोजीशन है। ये है टेम्पलेट। 2 × 4 8, 8 फिर माइनस लगाएंगे और 3 × 5 करेंगे 15 प्लस के, फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे तो इनसाइड के लिए नेगेटिव के लिए यू विल गेट अ सिंपल ब्रैकेट फ्री। ये रो का 2 × 2 -4 और -3 × 0 हो जाए तो क्या आ गया 10i। ये कितना आएगा 8 - 15 विल बी 7 -7, माइनस माइनस प्लस 8 - 15, 7 कैसे होगा, -7 होगा ना। हेलो क्या सर प्रियांशी, -7 इसमें कोई डाउट है तो बताओ नो सब्ट्रैक्शन में। नो नो ठीक है, कॉल इट बाय द साइन ऑफ द नंबर। -4k ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। उसके बाद सीधा सीधा वी कैन सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, बी ए क्रॉस बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, √10² प्लस 7 7²। 4²। इसको -4 लिखना, इवन दो ये प्लस होगा बट यू डोंट गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन कि ये +4 है। -4 है ना कंपोनेंट, -4 का स्क्वायर करेंगे। 100 प्लस 49 प्लस 16 कितना आएगा ये 149, 149 160 65 65 अब ये फैक्टराइज हो रहा है, देख लेते हैं 5 से डिवाइड करके। 5 3 और कितना जाएगा 3 आएगा 11 आएगा। ये देखो सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, सो दिस कैनॉट बी एनी फैक्टर कैनॉट बी टेकन आउट क्योंकि यहाँ पे पेयर ही नहीं है। तो यही हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या किया, यूनिट वेक्टर विल बी, ये वेक्टर कॉपी कर लो। ठीक है, आई विल कॉपी दिस, पेस्ट इट ओवर हियर। ये आ गया डिवाइडेड बाय √165। श्रेयांश, व्हाट द सेम आंसर, चेक कर Yes, sir. लेते हैं। 23 इज नहीं यार 23 है ना ये क्वेश्चन। Yes, या sir. सर नहीं ये आंसर थोड़ी ना, ये मैथ्स करने कर रहा है और आई एम चेकिंग द रॉन्ग आंसर। 23। So you should put -7 over there. हाँ या सर होल्ड, -7 नहीं नहीं कुछ भी मैच नहीं कर रहा, रुको। क्वेश्चन 23 में है, पहले वैल्यू चेक करूँ सही डाली है कि नहीं। 3 - 1 2 1, 1 - 1 -3 ठीक है, 4 - 3 1 भी ठीक है। बी ए निकाला, ए - बी, सो 2 कैंसिल और वो 5 आएगा करेक्ट। उसके बाद 3i, फिर निकालेंगे BC। BC निकालेंगे तो we will get 4 - 1 3, 4 - 1 3 ठीक है, -3 + -2 ठीक है, 1 + 4 4 के ठीक है। 205 होगा, 3 - 2 4 होगा करेक्ट। उसके बाद -10 + 10 ही आएगा करेक्ट। -j करेंगे तो 8 - 15 -7 + 7 ही आएगा करेक्ट। और ये हो जाएगा -4k। ओके ठीक है, -4k, हाँ ठीक तो है। उसके बाद हमारा 100 आएगा, 49 आएगा, 16 आएगा, √165 आएगा। ठीक है, इन्होंने यूनिट वेक्टर कैसे निकाला है। 23 है showing as -i -2j + 4k। hold on, हाँ ये भी क्रॉस AC। ओके ठीक है, सी देयर कैन बी मोर देन 1 यूनिट वेक्टर्स ना, सो मे बी
सी व्हाट हैपेंस इज, ये भी समझो कि जो तुम्हारा आंसर आया वो तुमने निकाला है इस ए क्रॉस बी से. व्हाट दे हैव टेकन इज ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी. सो उनका वेक्टर ही अलग है. इफ देयर वेक्टर्स इज डिफरेंट, ऑफ कोर्स देयर आंसर विल बी डिफरेंट. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे आंसर मैच Yes. नहीं कर सकता बिकॉज हमने जो लिया है वी हैव टेकन बी ए एंड बी सी. What they have taken is, I checked in the solution, they have taken AB and AC. So their vector is different. If your vector is different, of course, तुम्हारा जो वेक्टर निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, so it will be different, but it will still be perpendicular. Understood? ठीक है? What we have done is correct. यही आंसर. So should we Okay. mention plus or Any minus other? also? हाँ, sorry, क्या? So should we mention plus or minus in front of that answer? ये यूनिट वेक्टर. हाँ. प्लस प्लस यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगेगा बिकॉज इफ यू पुट अ माइनस इट मीन्स कि ये वेक्टर जो है नाउ इट इज गोइंग अंडर. So when I make under, it means it's going inside the page. What we are doing is we are taking it outside the page. So technically you are right, but the problem is you cannot because what we did is, अच्छा हाँ correct, we have done actually done BA cross BC, तो ये अंदर ही जाएगा. But you will not worry about the sign. क्यों? Because you will not worry about the sign because you have already taken care of it. Okay, sir. You don't have to put a minus. But yes, you're right. ये जो vector है, because we have found BA cross BC हम कर रहे हैं, ये क्या है? Clockwise है. और clockwise है, तो we will find the vector. But ये जो vector होगा, I'll make it down to show कि ये inside the page जा रहा है. ठीक है? ये जो जाएगा, ये जाएगा अंदर. So downwards means for us is inside. Okay? Vector goes inside the page, but still perpendicular. So आंसर तो सही है हमारा. ठीक है? Okay. क्लियर? प्रियांशी समझ में आया? Yes, sir. ये अगर तुम BC क्रॉस BA निकालते तो ये तुम्हें ऊपर मिलता और जो इसका साइन होता वो नेगेटिव आ जाता. बस यही फर्क होता. That would have been the only difference here. Okay, it's good for understanding. Okay, moving on. Question number 24 में भी डाउट है. 24 में क्या डाउट है? दीजिए. प्रियांशी, you have doubt in 24? No, sir, I was getting wrong answer. I think calculation mistake I made. इसमें बस ये देख लो कि वेक्टर A is given as स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं. 2j प्लस 3k. वेक्टर B जो है दैट इज I minus 3k. You are being asked vector B cross twice vector A. So the only new thing what you see is this 2a. 2a is nothing. You know vector multiplication. अगर एक scalar quantity is multiplied to a vector, you multiply all the components by that vector. हो गया. That's it. In short, your BA, first to find vector magnitude of the vector B cross 2a, you will first find vector B cross. ये वेक्टर निकालोगे, ये क्या होगा? 2a निकाल लो. सर क्रॉस तो वो है. 2 वेक्टर कितना हो जाएगा? ट्वाइस इनटू I minus 2j plus 3k. That's it. So 2i minus 4j plus 6k. This is your vector 2a. That's it. ठीक. तो B cross 2a vector will be same thing. Determinant बना लो. I j k. वेक्टर B कितना है? 1 0 minus 3. और 2a कितना है? 2 minus 4 6. 6. That's it. अब इसको सॉल्व कर लो. तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे. नॉट चेंज द टेम्पलेट. इसको हाइड कर लो. क्या आएगा? 0. 0. लिख लो 0 माइनस 4 इंटू -3 प्लस 12. तो 0 - 12 हो गया. माइनस j लगाओ ब्रैकेट. हाइड दिस. 1 इंटू 6 कितना आया? 6. माइनस लगा दो. फिर 2 इंटू -3 6. -6. तो ब्रैकेट में -6 लिखना. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ब्रैकेट में राइट द रिजल्ट.
ठीक है, माइनस साइन विल बी आउटसाइड बिकॉज इट्स इन द फॉर्मूला। के क्या आएगा, हाइट दिस 1 इंटू -4 कितना हो गया, -4, माइनस लगाओ, 2 इंटू 0 इज 0, क्या आया -12i, ये हो गया -12j, 12j 6 + 6 हो जाएगा 12, और हाँ -4k, 4k दिस इज योर वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, दैट्स इट। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 144 प्लस 144 144 प्लस 16 कितना आएगा, 288 प्लस 16 298 304, राइट, 304। देखते हैं ये फैक्टराइज होगा, अंडर रूट है, फैक्टराइज करेंगे 4 से कर लो, तो एक प्राइम, ये परफेक्ट स्क्वायर तो ये मिल जा रहा है 76, ठीक है, फिर 4 से जाएगा 19 इज अ प्राइम नंबर, तो ये क्या आएगा, दिस कैन बी रिटन एज 4 4√9 into 19, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4√9 और बाहर निकाल, ये आंसर होगा, यूनिट्स, करेक्ट। yes चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर इज 4√29 क्यों, एक सेकेंड, 4√29 29 वेट, sir you have to multiply by 2 no sir मल्टीप्लाई बाय 2 वेयर, that 2a फिर देखो ये कौन सा लॉजिक लगाती हूँ प्रियांश, मुझे नहीं समझ में, 2a यहाँ पे टेकन केयर कर लिया है ना, तो अब okay 2a आंसर में, बिकॉज देखो 2 दिख रहा है तो 2 okay में लगा दो, okay डोंट डू लाइक मैथ्स लाइक दिस, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी टेकन 2a ओवर हियर, राइट, नाउ ईदर देयर इज अ मिसप्रिंट व्हिच इज वेरी रेयर, मिसप्रिंट नहीं होता है, और वी हैव मेड अ कैलकुलेशन, और आई हैव मेड अ कैलकुलेशन, 288 प्लस 16 करेंगे कितना आएगा, 304 आएगा, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे 2 6, ये 1 ही है, ये 3 है, 19 ही है, 19 ही तो है। हाउ मच यू गेट चैंस, The same thing I got 4√19. 304 हाँ ये factorizing it, you'll मिसप्रिंट get है, 4√19. इट्स अ मिसप्रिंट, दिस द आंसर, यही है, करेक्ट है, ठीक है, दिस इज राइट। एनी डाउट्स, एनीवन, sir No, sir. if two people can, if they are getting the same answer, then probability is कि हमारा आंसर सही है, that's it, ये हो गया। और कोई डाउट, 25 sir. 26 also No, you sir. can do, okay, so see, cross product is complete, we have done all type of questions, इसमें कुछ अलग नहीं है, the only thing we have not done is we have not done the CBSE board के questions, the CBSE questions, Jash, what are you sharing, paper, I have it signed. Okay, like I have sent only the MCQ part, sir. In the long answer also there are 2-3 questions of Where, vectors. in which part, Sir, in section E, like case study, there's one question of vectors. okay, fine, so this is 65 code क्या है, 65/4/2, इसमें सेक्शन ए में देयर वाज अ क्वेश्चन, फर्स्ट लेट्स चेक दिस, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या बोल रहा है, द वेक्टर्स ए 2i minus j plus k, vector b which is I minus 3j minus 5k, and vector c minus 3i plus 4j plus 4k। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द वेक्टर्स ए बी सी रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, बी an obtuse angle triangle, C an isosceles triangle, and D a right angle triangle। मीनिंग ये सब पोजीशन वेक्टर्स हैं, सो यू विल हैव अ ट्रायंगल, ठीक है, ये सब ट्रायंगल हैं, और तुम्हें पोजीशन वेक्टर्स ऑलरेडी दिए, मतलब दीज रिप्रेजेंट द साइड्स, सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, करेक्ट। सो इसका आंसर कैसे निकालोगे, यू हैव टू, नाउ फर्स्ट इज की मैग्नीट्यूड निकालोगे, Yes, sir. दैट विल गिव यू द साइड, तो इट विल टेल यू वेदर इक्विलैटरल है कि नहीं, आइसोसेलेस है कि नहीं,
दैट इज वन. सेकेंड, उसने ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड और राइट एंगल्ड भी बोला है, मीनिंग एंगल भी निकालना पड़ेगा. दैट्स इट. करेक्ट. सो Yes, sir. लेट्स फर्स्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड. सबका मैग्नीट्यूड निकाल दो, बहुत सिंपल है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए A कितना आएगा? अंडर रूट 2 टू का square स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 1. 1 1 6. कितना आ गया? root 6 6. नहीं, अंडर रूट 6 है यार, उसको कंप्लीट बोलो. 6 नहीं है वो. फिर वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 सेकंड. हाँ, 1 1 है मैग्नीट्यूड. no 1 हाँ, इसको under बोलो 1 प्लस 9 प्लस 9 25. 25. कितना है? root अंडर 30. रूट 35. करेक्ट, अंडर रूट 35. ब्रेक नहीं कर सकते, 5 और 7 इसके फैक्टर्स हैं. वेक्टर सी, तो इक्विलैटरल तो ऑप्शन से चला गया क्योंकि साइड्स तो बराबर ही है. ये ऑप्शन इज 1, इट्स नॉट इक्विलैटरल. सी निकालते हैं, कितना आएगा? 9 प्लस 9 16 plus 16 plus 16. प्लस 16 कितना है? 32 प्लस 9 41. तो Yes, sir. आइसोसेलेस भी नहीं है. करेक्ट. तो इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस आर गॉन. मतलब या तो राइट एंगल होगा या तो ऑब्ट्यूज. Obtuse. ऑब्ट्यूज मतलब, नाउ रिमेंबर, ऑब्ट्यूज निकालने का फॉर्मूला जो हम थीटा निकालते हैं, राइट, साइन थीटा कॉस थीटा, एट दैट इज एन अक्यूट एंगल. रिमेंबर दैट. वो ऑब्ट्यूज नहीं होता. तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर देखते हैं. नाउ लेट्स टेक ए डॉट बी. ये एंगल निकालेंगे, इसको बोल देते हैं ए बी एंड सी, बिकॉज वी नीड टू रिप्रेजेंट एंगल्स. ठीक है, वर्टेक्स एंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो क्या होगा? इफ यू फाइंड ए डॉट बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है. फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट टू राइट इट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. इनके बीच में क्या एंगल है? ए एंगल. तो ए लिखेंगे. ठीक, ठीक है. ए डॉट बी वी कैन इजिली फाइंड. ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 3 माइनस 5. ये minus देखो, ये 5 जीरो आ है. गया. 2 प्लस 3 माइनस 5 आ गया. मैग्नीट्यूड तुम्हें जो रखा रखो. अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 35 इज कॉस ऑफ ए. इन शॉर्ट देखो, ये जीरो आ गया. तो तुम्हें एंगल निकालने की जरूरत नहीं है. डॉट प्रोडक्ट इज जीरो मीन्स व्हाट? कॉस ए इज जीरो, ये 90 है. कॉस पाई बाय 2. In short, this is a right angle triangle. Right angle. Hence, A is pi by 2. Also, we can say vector A dot B is 0, meaning A and B are perpendicular. Hence, the position vectors. इतना लिखना नहीं है, I'm writing for your understanding. ये objective question है. So you can mark it by showing that A is 90 degrees. Vectors form a right angled triangle. Triangle. ठीक है. तो इसमें एक चीज क्या कर सकते हैं, because right angle is an option and the fastest way you can find whether it is 90 degree or not, which will save you time, is इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो. अगर वो जीरो आ जाता है तो मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेक सेंस? सो ए डॉट बी 2 आ गया, ये प्लस 3 आ गया, ये माइनस 5 हो गया, यहीं पे 0 हो गया, मीनिंग योर डॉट प्रोडक्ट इज 0. 0. ठीक है, क्लियर? He is not right what we did last time. We'll retry this with the actual logic. Now vector A is any vector, right? So what we take, if vector A is any vector, we take it as xi plus yj plus zk, right? This is our any general vector when we assume it, correct? Now think, let's just focus on, so we have to evaluate this expression in vectors. We know what is A cross I, isn't it? So let's write A cross I first and then we will square it. So A cross I will become what? It will become xi plus yj plus zk cross vector I. So we are not using the determinant method over here. This will work. I'll tell you how. So
the normal multiplication rules apply here. What we do? We will do xi in cross I, correct? So normal multiplication, how do you do? You take all the terms and multiply with this one by one, right? That's what we do. So x I cross I. What will be I cross I? It will become 0. 1, Why? 0, 7. No, 0. Dot product is 1. Cross product is plus y. This will become j cross I. Correct? Then this will become z k cross I. Okay? Any doubt still here? Now, No, sir. this becomes what? 0. Vector orthogonal triad. Okay, just to remind you, why is this 0? Where is our dot cross product? Cross product is second vector cross product. So just to show you that I cross I becomes 0. Okay, I cross I, j cross j, all of them are 0 because sign is 0. So the angle between them will be 0, hence. And what will be I cross j? If you see, I cross j is k. Similarly, j cross I is minus k. Correct? Because now you will be going clockwise. Correct? So look here. Where were we? Here. This becomes 0. Okay, I cross I becomes 0 plus y. J cross I will be what? So this is your j, this is I, isn't it? If you come, you are going clockwise. If you are going clockwise, your screw will go inside the page. Correct? Your screw will go inside the page, meaning this will be minus k. Any doubts in this? Clear, right? Plus z. Similarly, k cross I. So think, this is your k generally. This is what we have, right? K. So k cross I again will be clockwise. No, wait. K cross I will become, if this is your k, this is 90 degrees. Here you are going anti-clockwise. This is k, right? K and I. So for this you go anti-clockwise. So here it will be plus j. Understood? Any doubts still here? Okay. Yes, sir. So we get how much? We get z j minus y k. This is a result for A cross I. Understood? Similarly, we'll not square it now. Okay, we'll just keep it over here. Similarly, A cross J will be what? So if A cross I gives you zj and minus yk, then vector A cross J will give you how much? This is y-axis ka unit axis with the z coordinate, right? So here we can actually solve it. If this is j, imagine if this is j, what will we get? This will become 0. You will get I cross j, which is x into k, correct? And if you have j over here, k cross j, this will be clockwise. You will get minus z k. Correct, right? This is j minus zk. Is this part clear or do you have doubts here? No. Okay. Then vector A cross k. Let's say there is k over here. Z wala thing will become 0, k cross k. What do you have? You have x into x cross x I cross k. I cross k will now become clockwise. Right? I cross k will now become clockwise. You will get minus xj, and here we will get y. Here we'll get j cross I. J cross I will be clockwise again. So it will be minus. Make sense? This is k. If you do j cross k, no, this is anti-clockwise. This will be plus, and this will become y cross plus yi. Is this part clear? Pakka? Yes. Sure? Any doubts?
Okay, let me remove, or let it be. We'll do it over here. Let's shift this a bit up. Now we have what? We need to find iska square plus iska square and add it. So square it. If you square this, what do you get? Zj minus yk ka whole square, right? Let me add one more page. Do it over here. Okay. So this is, let's square this. So when you square this, vector A I ka square. So when you square any vector, it is equals to its magnitude square. That part we already know. This will become Zj minus Yk ka whole square. Correct? Squaring both sides. Yeah. Now let's square it. We will do A minus B ka whole square. Right? So we will get Z square J square, vector का square is its magnitude का square, ठीक है, plus y square unit vector magnitude k का square and minus 2yz j dot k. What will be this? This will become 0 because j dot k is now cos 90. Okay, Shyansh, any doubts? No, sir. We are almost done. So it was actually a good question. It was not that simple. It looked in the beginning. So what do you get? Z square. This is what? This is 1. Right? 1 square plus y square. Magnitude of k. Unit k is also 1. So in short, you get y square plus z square. Okay? Similarly, what will be magnitude of a into magnitude of j ka whole square will now become similarly x square plus z square, isn't it? X square plus z square. And similarly, a cross k ka magnitude ka square will become simply square its component x square plus y square. We had to evaluate, let's call it 3, 2 and 1. What do you do? Adding 1, 2 and 3. What do you get? Magnitude of a cross I ka square plus magnitude of a cross j ka square plus magnitude of a cross k ka square equals y square plus z square plus x square plus z square and x square plus y square. Add the like terms, you will get 2x square plus 2y square plus 2z square, correct? Right? And finally, twice of x square plus y square plus z square. Okay, any doubt still here? No doubt. And what is this? See, they already told that magnitude of A is represented by this small a, correct? So what will be magnitude of A? If you have to find the magnitude of A, it will be under root x square plus y square plus z square, correct? In short, here you have A, okay, which is nothing but this. If you square it, you get A square as x square plus y square plus z square, isn't it? So your answer will be 2a square. This is the answer. Right? But it's a very good question. We have not seen this type of question. Now if it comes, you will be in a position to solve it. Correct? What did we do? We only applied the formula for A cross I and we have used the orthonormal vector triad. That's it. Correct? And squaring of vector you already knew. Make sure you add this question to your list. देखते हैं.
So let's first talk about question number 17. इसमें क्या करना? If A and B are two vectors such that magnitude of A is given, magnitude of B is given, and A dot B is given, then find the angle between them. So assuming the angle between them is theta, ठीक है, ऐसे AB बना लो और इसको थीटा रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, और लिख दो थीटा इज एंगल बिटवीन देम. सिंपली क्या यूज करेंगे? A डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B. अरे नहीं सॉरी, इसको नहीं निकालना है ना, हमें निकालना है 2A और B का. तो क्या करेंगे? 2A डॉट माइनस B, करेक्ट, ये होगा, इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है, राइट, क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ 2A, करेक्ट, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी. ठीक है, इसमें दो ऑप्शंस है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो. लेट्स डू इट लाइक दिस. माइनस बाहर कर लो, इट्स जस्ट अ स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाइड, तो दिस कैन बी रीरिटन एज -2a डॉट b. इन शॉर्ट -2 इज जस्ट अ नंबर मल्टीप्लाइड टू a डॉट b. ठीक, ये क्लियर है? सो डोंट लेट इट पार्टिसिपेट. -2 बाहर रखो, ब्रैकेट लगाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ a into magnitude of b into cos of theta. That's it. करेक्ट, ठीक है. अब इस -2a डॉट b को हमें वैल्यू देना पड़ेगा, राइट. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो -2, एक सेकेंड, 2a डॉट b निकालना है, तो उसका वैल्यू निकाल के फिर इक्वेट करेंगे इससे. -2 a डॉट b से सीधा एंगल भी तो निकाल सकते हैं, हमें ट्वाइस a डॉट b में चाहिए. ओके ठीक है. देखो इसमें क्या करेंगे, इसको फिर से देखते हैं. A and B are two vectors such that magnitude of A, magnitude of B is given, A dot B is given, then बोल रहे हैं find angle between 2A and -B. ठीक है. So what they have done, this is a good question. What they have done is actually they are asking us to find the angle here. ये वाला पूछ रहा है, right? They are talking about -B. तो देखो अच्छा क्वेश्चन है. लेट्स एक्सटेंड दिस. ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया -b. ठीक है ना, ये तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट. सो व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? हमको निकालना है 180 माइनस थीटा. यस और नो? मेक सेंस? लुक एट दिस. वी नीड द एंगल. नाउ 2a क्या होगा? 2a मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दैट विल बिकम 2a. यस और नो? इसका डायग्राम थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं. रुको इसको फिर से करते हैं. What we will do here is let's make A. ठीक है, ये तुम्हारा A है. Let's make वेक्टर B. तो ये हो गया वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर B. ठीक, यहाँ तक क्लियर? नाउ हमको बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन 2A एंड -B. सो वी कैन रिप्रेजेंट 2A ना. 2A क्या होगा? इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, थोड़ा सा छोटा करेंगे. ये अगर A है सॉरी, ये A है, इसको उतना ही और बढ़ा दोगे तो ये 2A हो जाएगा. यस सर नो? मेक सेंस? तो ये जो तुम्हारा वेक्टर हो गया, अब लेट्स से दिस इज 2A. मैग्नीट्यूड बढ़ाने घटाने से एंगल में फर्क नहीं पड़ता, एंगल रिमेन सेम, राइट. 2A. अब वी नीड द एंगल बिटवीन -B. तो -B क्या होगा? इस साइड में सेम लेंथ का मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर और निकाल दोगे तो ये हो जाएगा -B. इतना क्लियर है, राइट? तो हमें एंगल चाहिए ये वाला. मेक सेंस? चाहिए. अब या तो तुम इसको थीटा लो, हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस एज थीटा एंड दिस विल बिकम 180 माइनस थीटा फॉर अस, राइट. सो सी हाउ आर वी चेंजिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन को हम अगर सिर्फ A डॉट B ही निकाल लें तो वी विल गेट आर थीटा. मेक सेंस? लुक एट दिस. If you do
ए डॉट बी कितना होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी गिवन है √3, ए क्या है 1, ये क्या है 2, ये है कॉस थीटा। सो इन शॉर्ट कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा विल बिकम √3/2, करेक्ट। √3/2 किसका वैल्यू है कॉस में, तुम लोग को याद नहीं है अभी तक। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्रीज और 30 डिग्रीज लिखते हैं, ठीक है, ये 30 डिग्रीज होता है, विच इम्प्लाइज थीटा जो हमारा आया वो है 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है गाइस, इज दिस क्लियर, आंसर तो करो। Yeah, sir. ओके तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, हमारा एंगल थीटा ही रहेगा, भले ही तुम इसको कितना भी एक्सटेंड कर दो, इट डजंट मैटर, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, राइट। मैग्नीट्यूड चेंज करने से डायरेक्शन नहीं चेंज होता। सो ये हो गया थीटा, और अगर हमारा थीटा 30 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 30, एंगल बिटवीन, और ये पाई के फॉर्म में था, तो लेट्स राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। ऑप्शंस आई थिंक पाई के फॉर्म में, तो लेट्स राइट इट एज पाई/6। तो थीटा क्या हो गया पाई/6, एंगल बिटवीन 2a and minus vector b is 180, which is pi minus pi/6, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा आंसर 5 pi/6, ये होगा आंसर। क्लियर है, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, Okay, sir. ठीक है। ऑप्शन में देखो है 5 pi/6 Yeah, है, sir. ऑप्शन सी होगा इसका। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम गॉट राइट, बट इसको ऐड करो, because it is actually telling you concept wise how to find. Clear, make sense? Yes, sir. Any doubts? Yes. ठीक है, जस्ट टू रिकैप क्या किया हमने, हमें एंगल निकालना है 2a और -b के बीच में। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली, हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा डायग्राम को यूज किया। a और b में एंगल लिया थीटा, बी वेक्टर पता है तो -b बनाते हैं, सिर्फ ऑपोजिट साइड में इक्वल मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर हम बना देंगे, ये हो जाएगा -b। और a को अगर 2a करना है तो उसका मैग्नीट्यूड को डबल कर देंगे, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा 2a, ठीक है। क्लियर श्रेयांश, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, क्या sir. लगा? ओके, एनी डाउट्स एनीवन? No, sir. इसको 2 स्टार देते हैं, गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एंगल। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का आया है, एंड ट्रस्ट मी ये इतना इजी है, राइट, यू शुड बी एबल टू डू इट नाउ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है, केस स्टडी 4 मार्क्स का। देयर इज अ टेलीस्कोप, पहले क्वेश्चन समझो, देयर इज अ टेलीस्कोप सिचुएटेड एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पे है, ठीक है। देयर आर 3 स्टार्स इन योर कॉस्मोस, वी स्टार, डी स्टार और ए स्टार, ठीक। ऑफ कोर्स 3D में है तो ये कहीं होगा, ये कहीं पे होगा, ये कहीं पे होगा, ये 2D फिगर नहीं, राइट। ये ऊपर आसमान देखो तो कहीं भी हो सकते हैं स्टार्स, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखो बहुत ही सिंपल है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने V का पोजीशन वेक्टर दे दिया, ठीक है। जो डी ए वी जो स्टार्स हैं उनका पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे गिवन है रिस्पेक्टिवली, मतलब ये D का है, ये A का है और ये B का है। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, यही होता है ना पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से, करेक्ट। तो ये गिवन है, ये गिवन है और ये भी गिवन है, ठीक है, करेक्ट। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, जो सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हाउ फार इज स्टार वी फ्रॉम ए, कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है यार, हाउ फार इज स्टार वी फ्रॉम ए, इसका वेक्टर निकाल लो, पोजीशन वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, हो गया, इजंट इट, मेक सेंस, वही होता है ना वेक्टर। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, हाउ फार इज स्टार वी फ्रॉम ए,
ए बी निकाल लो या बी ए निकाल लो, कोई भी निकाल सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किया हमने यहाँ पे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यहाँ पे क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी गिवन है ये, तो इसको यहाँ से ले लेंगे, -3i, -3 + 7 + 11, राइट, -3 + 7j + 11k, माइनस ए क्या है, 2 3 2 4, नहीं सॉरी, ए है ये बीच वाला है, 7 5 8, 7 5 8। क्वेश्चन वेक्टर निकाल लो, बहुत सिंपल है, -3i -7i कितना हो गया, -10i, 7j -5j कितना हो गया, +2j, 11 -8 कितना हो गया, +3k, करेक्ट, दैट्स इट। ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर ए बी, मतलब बी ए निकाले या ए बी निकाले एक ही बात है, हमने ए बी निकाला, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो क्या होता है, ये लेंथ ही तो होती है ना, तो डिस्टेंस निकल आया, करेक्ट। सो केस स्टडी में दे विल गिव यू अ रियलिस्टिक एग्जांपल या एक रियलिस्टिक विजुअल कि वेक्टर्स को कैसे आप यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, हाउ यू कैन यूज वेक्टर्स एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स, इजंट इट, राइट। कोऑर्डिनेट है, यू कैन आल्सो यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D में भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करके लगा सकते हो, बट वेक्टर इज आल्सो वन वे टू डू, एंड ये रिलेटिव पोजीशनिंग भी बता देगा आपको। सो अब कैसे होगा डिस्टेंस, इसको लिख दो ऐसे, डिस्टेंस इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, कितना हो जाएगा, 100 + 4 + 9, कितना आया, √113 यूनिट्स, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ स्टार बी फ्रॉम स्टार ए, क्लियर है, इजी, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, मुझे तो नहीं दिख रही, इजी क्वेश्चन है, राइट, तो तुम लोग कर सकते हो, बहुत इजी है। सेकेंड क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डीए डायरेक्शन में पूछ रहा है यूनिट वेक्टर, तो इसमें ध्यान रखना बिकॉज मैग्नीट्यूड नहीं है, डी ए, तो यू हैव टू फाइंड डी ए ओनली। पहले क्या करोगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसको ले लो, लेट यूनिट वेक्टर बी एन, एन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर एन क्या हो जाएगा, सिंपली वेक्टर डी ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, इजंट इट, करेक्ट, ये होगा ना, Yes, sir. ऐसे तो निकालते हैं ना यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, सिंपल है, आप वेक्टर डी ए निकाल लो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो लेट्स फाइंड वेक्टर डी ए फर्स्ट, क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए A माइनस minus B. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ए हम यहीं से उठा लेते हैं क्योंकि लिख रखा है, कॉपी दिस, आई पेस्ट इट ओवर हियर, क्या गया, पोजीशन वेक्टर ए माइनस पोजीशन वेक्टर डी, क्या है, डी है हमारा 2 3 4, तो 2i + 3j + 4k, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 7 - 2 5i, 5 5i Bye - bye. 3 + 2j, 2j. 8 Yes, 2, - 4 4k, ये आ गया डी 4. है, Yeah, यूनिट sir. वेक्टर कितना आ गया, 5i + 2j + 4k डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 plus 16. 16, इन शॉर्ट ये आया 1 अपॉन 40. √ 45, 45. 45 ना 6 नहीं, 5i + 2j + 4k, 45 Sir, है under root तो, 45 can be written, no? As हाँ 3 root 5. एग्जैक्टली, ये हो जाएगा 3√5 Root 5 5i + 2j + plus 4k, 4k. ये आ गया यूनिट वेक्टर, इजी, Yeah, sir. 2 मार्क्स मिल गए, डन, ओके, वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल VDA। अब थ्री थ्री लेटर नोटेशन पता है, VDA का मतलब क्या है,
बी से डी आओ, डी से ए जाओ, क्या एंगल बना? ये एंगल बना। टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इसको थीटा मान लो। लेट्स से दिस इज थीटा। ठीक, क्या निकालना है? वी डी और डी ए निकाल लो, उसके बीच का एंगल निकल जाएगा। तो वी डी मत निकालना, यू विल फाइंड, क्योंकि वी डी क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट, ये वाला डायरेक्शन। Instead of that, we need to make our initial vectors at the same position. We will find vectors dv and da हमने already निकाल रखा है। ठीक है, so our third portion will be, we have to find vector, कैसे लिख लो, vector dv dot vector da, isn't it? Vector dv dot vector da is equals to क्या, magnitude of dv divide into magnitude of da into cos of angle between them, which we have to find, जो हमने थीटा यहाँ पे अज्यूम कर लिया है ऑलरेडी। मेक सेंस? ठीक है, तो अब निकाल लो। डी ए तो हमारा निकला हुआ है, राइट, डी ए हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें सिर्फ डीवी निकालना है। तो कॉल इट इक्वेशन 1। वेक्टर डीवी सेम थिंग, पोजीशन वेक्टर ऑफ वी, अब सीधा डायरेक्टली कर देंगे। डीवी निकालना है, तो v माइनस डी, -3 -2 कितना हो गया, -5i। -5 माइनस ठीक, उसके बाद ये डी है, ये भी है, राइट, 7 - 3 4j प्लस 4j, और k कितना है? 11 - 4 7k, 7 तो ये गया +7k। डीवी आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं पर निकाल लेते हैं, रखने में इजी होगा। मैग्नीट्यूड और डीवी कितना हो जाएगा, √25 + 16 + 49 49 + 49 कितना आएगा ये? 90 90। ये हो गया 41 + 49, हाँ 90, करेक्ट। 90 को लिख सकते हैं 9 × 10, ये कितना हो जाएगा, 3√10 यूनिट्स। अब cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? cos थीटा विल बी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डीवी कितना है, -547 -547 डॉट, डीए कितना है, डीए हमने ऊपर निकाला था 524 524 डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √45, which we wrote as 3√5 into 5 3√10। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। डॉट प्रोडक्ट तुम लोग को आता है, आई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो। -5 × -5 -25 25 4 × 2 +8 +28 8 7 × 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो 3 × 3 हो गया 9, 5 और 10 दोनों अंडर रूट में है, तो यू कैन टेक देम इनसाइड। तो 5 × 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, isn't it? तो एक पेयर और बाहर निकाल लेंगे, विच इज 5, तो क्या हो जाएगा 28। 45√2 पहले ऊपर का देख लेते हैं, हाँ वो सही है। 25 - 8 3 3 + 8 11 डिवाइडेड बाय 9 × 5 √2 और 11/45√2 इज cos थीटा। तो तुमसे पूछा है थीटा, थीटा इज नथिंग बट एंगल, क्या था, VDA, करेक्ट। उसी फॉर्म में लिख दो आंसर, एंगल VDA इज इक्वल टू cos इनवर्स 11/45√2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसमें 2 मार्क्स हो सकते हैं बिकॉज थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व। ठीक है, कोई डाउट? इजी। नो सर। अब एक और
सी व्हेन यू डू द क्वेश्चन इन द एग्जाम तुम्हें सिर्फ 1 2 3 करना है, क्योंकि ये और में है, ठीक है, और विद ओनली, तो या तो यू डू थर्ड में, या तो यू फाइंड मेजर ऑफ बीडीए, और you have an option to find projection of vector dv on vector da. So see how smartly they have asked. तुमको दोनों में dv और da निकालना ही है, ठीक है। तो dv प्रोजेक्शन ऑफ dv on da कैसे निकलता है, क्या जाएगा डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड, ये वाला, राइट, करेक्ट, ये dv डॉट da डिवाइडेड बाय da, करेक्ट। DA. प्रोजेक्शन का फॉर्मूला देख लो एक बारी, इफ यू गाइस हैव फॉरगॉटन, कहाँ गया प्रोजेक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्केलर डॉट डायरेक्शन कोसाइंस एडिशन प्रोजेक्शन, वन सेकेंड लेट मी चेक कर दिखा देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट स्केलर पैरेलल, ये है प्रोजेक्शन, ठीक है। ये देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जस्ट टू रिवाइज, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर से ए इज प्रोजेक्टेड ऑन बी, तो जिस पे प्रोजेक्टेड है, ठीक है, जिस पे प्रोजेक्टेड है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में डाल दो, न्यूमरेटर में से डॉट प्रोडक्ट रखो, ठीक। तो यहाँ पे Yes. क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ डीवी ऑन वेक्टर डीए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डीए जो है वो आपका जाएगा डिनोमिनेटर में, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। लास्ट पार्ट लेट्स कंप्लीट दिस। तो क्वेश्चन का पार्ट 4, उसको पी ले सकते हो, क्या आएगा, डीवी डॉट वेक्टर डीए डिवाइडेड बाय सिर्फ डीए का मैग्नीट्यूड, अंडरस्टूड, ठीक है। अब dv डॉट डीए भी हम निकाल चुके हैं, तो वी कैन रीयूज द रिजल्ट। कितना है dv डॉट डीए, 11, लिख दो, 11 डिवाइडेड बाय डीए का मैग्नीट्यूड क्या है वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, 3√5 डाल दो, ये आ गया प्रोजेक्शन, दैट्स इट, ये हो गया आंसर।